Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again for analysis of financial statement. Now, the very first thing that I had introduced to you when I had started and when you had started to learn analysis of financial statement was a vertical format. Vertical format के अंदर पहले बैलेंस शीट आपको पढ़ाया, बैलेंस शीट को कॉमन साइज और कंपैरेटिव, ये दो अलग स्टाइल के एनालिसिस आपको पढ़ाए. देन शिफ्ट हुआ वर्टिकल income statement, revenue statement, what is behind me. Today I am going to be doing something connected to the vertical income statement. Now very quickly, what is that I have covered up in a vertical income statement? Very quick एक refresher course में आपको देता हूँ कि we start with sales and we minus sales return, we get net sales. Then there is a concept or a term called as cost of goods sold. What is cost of goods sold? फैक्ट्री के खर्चे, ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, परचेस रिटर्न आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, फैक्ट्री के खर्चे. फिर आपको आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, थोड़ा नीचे आ जाइए. देन यू डू लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? बिजनेस के खर्चे. ABC ऑफिस का अलग आता है, फाइनेंस का अलग आता है, सेलिंग का अलग आता है. देन यू गेट टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ABC को ऐड करके, फिर उसको माइनस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट से, आपको आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. वेरी रेयरली आपको आपके क्वेश्चंस में कभी आया होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. व्हाट इज इट? वेल, वो जो बिजनेस के साथ बिजनेस में हर दिन नहीं होते उसको कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग. उसको प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, अगर है देन आई विल गेट NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टैक्स को माइनस करूंगा, फिर आएगा NPAT. ओके, द रीज़न मैंने ये पूरा रामायण रिपीट किया इज बिकॉज question can come on this. It can be a very simple vertical income statement, but they can also ask you, no, we don't want that, we want common size or comparative. So today what do they want? Well, question देख लेते हैं. Not this one, ये पहले से solved है. Okay, this is a question which I had solved in one of the previous lectures, which was based on common size. common size में क्या होता है? एक amount और एक परसेंटेज. वेरी इंपॉर्टेंट, एक अमाउंट और एक परसेंटेज. तो अमाउंट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. क्यों? अभी वो भी मैंने काफ़ी बार बताया है, नो प्रॉब्लम्स. एक और बार रिपीट कर देता हूँ मैं. बिकॉज अमाउंट्स कैन बी एनी अमाउंट्स, इट कैन गो टू एनी लेवल. ओके,
a few hours back, I got a notification on the mobile phone. Okay, it says Reliance company का 44th AGM is starting online. तो I just did click, ये वो सब fill up किया and start हो गया. Now please note, it's a big company. जब वो डील करती है तो वो करोड़ों करोड़ों में अमाउंट में डील करती है. अगर उस AGM के अंदर मुकेश अंबानी, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, द एंटायर फैमिली अगर भले ऑनलाइन बैठे हैं, ओके, द डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स वो ऑनलाइन बैठ, देयर वर अराउंड 22,000 पीपल वॉचिंग, दैट्स अ बिग नंबर. ओके, इतने बड़े बड़े लोगों को, वेल बड़े बड़े लोग और इतनी तादाद में लोग को अगर आप 2 करोड़, 4 करोड़, 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख अगर ऐसे में बात करने को लगोगे तो दे विल बी कंफ्यूज्ड. उनको समझ में नहीं आएगा, उनको गूगल करना पड़ेगा. हाँ, तो क्या किया जाता है, दोज बिग नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज. कि वो तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ में से है, 100 में से कितना परसेंटेज. देयरफॉर इन अ इनकम स्टेटमेंट जितने नंबर्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज. जो नेट सेल्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सेल्स, नेट सेल्स, उसको हम बेस अमाउंट कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. बेस अमाउंट क्या है, बेस अमाउंट को 100 रखा जाता है बिकॉज उसी के ऊपर कोई चीज़ बढ़ती है या कम होती है. ओके, तो आई रिपीट माई सेल्फ, इन दिस दैट इज वॉट वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, हमको नेट सेल्स को बेस अमाउंट रखना है. व्हेन इट वाज अ बैलेंस शीट तो टोटल फंड्स रेज्ड और टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, ये जो नंबर्स थे वो 100 थे. ऑब्वियसली यू विल, व्हेन यू लुक एट, व्हेन यू वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स, आपको वो भी समझ में आ जाएगा. दिस क्वेश्चन हैड 1 year, तो 1 year and percentage. I did have done one more question where there were 2 years given, but it is not comparative, common size ही कहा था. Then how did you solve this? First year percentage, second year percentage. Please note, हाँ, very importantly, question को पढ़ना. क्वेश्चन ने कहा common size income statement, there has to be 1 year, उसका बगल में percentage. Today's question which we are solving right now is almost the same. It says prepare common size income statement. Again, the question number, the page number, the illustration number, subtitle, question lecture के title में आपको नजर आएगा. For the year ended 31st March 19 and 31st March 20. Please note, it is not comparative. वो एक अलग स्टाइल का सोल्यूशन है. ओके, क्या दिया है, नेट सेल्स, तो हम तो नेट सेल्स से ही स्टार्ट करेंगे. लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा, अच्छा है, उन्होंने ही बोला है माइनस. ग्रॉस प्रॉफिट, ओ ये तो और अच्छा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेडीमेड है. लेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी जाता है ऑपरेटिंग में. नेट प्रॉफिट, तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट द एंटायर फॉर्मेट इज गिवन. हमको ये पहले 2 years में सॉल्व करना है, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. अबाउट मी, वी विल स्टार्ट विथ net sales. For the first year it is 5 lakh and the second year 6 lakhs. Okay, less cost of goods sold मतलब ट्रेडिंग अकाउंट आप माइनस कर रहे हो 3 lakh and 3,60,000, you will get gross profit. तो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर, ट्रेडिंग अकाउंट माइनस किया तो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आ गया. हाउ मच, 2 lakh, 2,40,000. दिस इज बेसिकली अ कॉपी किया है क्वेश्चन से. देन लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस से कनेक्टेड खर्चे, 2 एक्चुअली 3 होते हैं, ऑफिस का, फाइनेंस का और सेलिंग. आपको 2 ही दिया है तो 2 ही लिख लीजिए. पहले ऑफिस का दिया है, जो खर्चा दिया है वो अमाउंट को दोनों साल में लिख लीजिए. 55,000, 72,000. सेलिंग का खर्चा, फाइनेंस का नहीं है तो डोंट राइट इट. 52,500, 66,000. अब ये दोनों को ऐड करो बिकॉज नाउ यू विल गेट टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, सो ए प्लस बी, नॉर्मली इट इज ए प्लस बी प्लस सी, बट यहाँ पे ए प्लस बी. 1,07,500, 1,38,000. I repeat, this is operating expense.
इसको जब आप ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करो आपको आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ है ही नहीं, टैक्स भी नहीं है। देयरफॉर योर आंसर कैन हैव 3 नेम्स टू इट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एनपीबीटी, एनपीएटी, सब सेम ही है। हाउ डू यू गेट इट? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया, नो, टीओआई नहीं, टीओई, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 92,500, 1,02,000। तो क्या करना है? अरे अभी तक तो काम शुरू नहीं हुआ। दिस इज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर 2 years। कॉमन साइज में करो। कॉमन साइज में कैसे करते हैं? नेट सेल्स 100 होता है, उसको कहते हैं बेस अमाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों साल साथ में, नो नो नो, फर्स्ट ईयर का नेट सेल्स फर्स्ट ईयर के लिए बेस अमाउंट, सेकेंड ईयर का नेट सेल्स सेकेंड ईयर के लिए बेस अमाउंट। हाउ डू आई मेक द अमाउंट इनटू अ परसेंटेज? सी द नेट सेल्स इज 100, उसके बारे में लेट्स नॉट डिस्कस, वो 100 है बेस। यू हैव टू फाइंड आउट वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना 3 लाख, वो आउट ऑफ 100 कितना है, मतलब आउट ऑफ 100 ये काम आता है। क्या है ये फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ द गिवन आइटम 3 लाख into 100 अपॉन बेस अमाउंट। सो इन द फर्स्ट ईयर द बेस अमाउंट इज 5 लाख। सेकेंड ईयर में जब हम करेंगे तो बेस अमाउंट को हम लोग 6 lakhs करेंगे। सो राइट नाउ लेट मी सॉल्व फॉर द फर्स्ट ईयर। सो आई हैव अ वर्किंग नोट ऑल्सो, तो मैं वर्किंग नोट भी कर रहा हूँ और उसके बाद में आंसर में यहाँ पे लेकर आऊँगा। परसेंटेज अगर डेसिमल में आता है 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप खुशी खुशी लिख सकते हो, उसके आगे गम नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पहले for the first year which is 31st March 2019 we are doing this for cost of goods sold। फॉर्मूला एक ही बार लिखना है, उसके बाद में आपसे उसका एप्लीकेबिलिटी दिखाओ। सो इट इज 3 lakh into 100 upon 5 lakh and you get 60%। very simple। if I'm going a little fast, the speed is fine, okay, you can always pause it and write it। 60% is to be written in the percentage column। ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, अभी ऑब्वियसली ना अलग से करना पड़ेगा, इट्स अ डिफरेंट नंबर, सो इट विल बी अ डिफरेंट परसेंटेज इनटू 100 अपॉन 5 लाख। सो 2 डेसिमल प्लेस अगर डेसिमल में आता है 40%। वेरी सिंपल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 55,000 into a percentage। Into a percentage meaning converted into a percentage, so into 100 upon the base amount which is obviously 5 lakh। 11%, okay, 1 हमेशा you will not get a perfect number, a whole number। डेसिमल में आता है, आएगा तो लिख लेना प्लीज 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 52,500। So the moment it is a little bit of an अजीब number, you will not get a perfect answer, मतलब डेसिमल में आ सकता है। You get 10.5, okay, चलेगा, वो भी राउंडेड ऑफ ही है, 10.5। We are converting amounts into percentages because to talk in percentages is a lot simpler, okay। If you go to the CoWIN website and you will find information, in fact वहाँ पे दिया है इतने करोड़, 55 करोड़, 66 lakhs, 20,321 people are vaccinated। अरे ये ना उतना बायोट ही नहीं होएगा, याद ही नहीं रहेगा। बट दे ऑल्सो गिव इट इन परसेंटेज, बाद में वो स्टेटिस्टिक्स देते हैं तो परसेंटेज समझ में आता है। ओ मतलब इंडिया का 20% वैक्सीनेट हो गया, चलो भाई अच्छी बात है। सो यू अंडरस्टैंड परसेंटेज अ लॉट ईजियर, नॉट जस्ट पीपल हु आर नॉट एडुकेटेड, जो एडुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, उनको भी सिंपल परसेंटेज समझ में आता है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच वॉज द एडिशन ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग 1,07,500 गिव्स यू 21.5 एंड लास्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज़ 92,500, उसको कन्वर्ट करते हैं, ये हमको फर्स्ट ईयर के परसेंटेजेस दे देता है। एंड सेकेंड ईयर के लिए यू कैन डू इट, आपने सही यही ले लो, नहीं रे बेस अमाउंट अलग है तो 6 lakhs हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके परसेंटेजेस अलग आएगी 18.5। तो कोई शॉर्टकट तो नहीं है,
मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, आपको बेस अमाउंट चेंज करना पड़ेगा 6 lakhs एंड यू हैव टू सॉल्व फॉर द सेकेंड ईयर. तो लेट्स ट्राई इट आउट फॉर द सेकेंड ईयर विच इज 2020. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई थिंक वॉज 3,60,000 अपॉन 6 lakhs, 60%. तो चलो भाई 60% सेकेंड ईयर में लिख लेते हैं. बेस अमाउंट वॉज 100, सो वो तो पहले आया. ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 ग्रॉस प्रॉफिट. ये कितना आउट ऑफ 100 है, बेस अमाउंट इज डिफरेंट. 40. ऑफिस इज 72,000, बेस अमाउंट 6 lakhs, percentage into 100. 2, well not 2, 12%. Selling and distribution, it sometimes, not sometimes actually, काफ़ी बार when this list is long it does get a little bit boring, but do understand this chapter is normally a chapter which is asked when a calculator is permitted. So these calculations can happen a lot quicker with the help of electronic device, a calculator. तो जल्दी हो जाता है. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,38,000 है. उसको आउट ऑफ 100 ढूंढ लेते हैं. 23 डेसिमल्स तो नहीं आया है, विच इज़ गुड, खुश खबर. लास्टली 1,02,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, NPBT, NPAT 17%. Then that's it. Conversion of amounts into percentages for explanation purposes, for analysis purposes, statistics के लिए किया जाता है. There is something called as comparative, वो उसकी कैलकुलेशन अलग होता है, उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है. Let's not worry about that. आज के लिए this is it. Okay, I am doing my best. If there are some sums or illustrations remaining, I will cover all of them also for you. This explanation, if understood, please do like the video. Your support is extremely important. For that, definitely subscribe to the channel, share all the lecture videos with everyone that you know in all your WhatsApp groups, your Instagram post. अगर आप लिंक शेयर कर सको तो बहुत बढ़िया होगा. फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल सको तो भी बहुत बढ़िया होगा. We are doing our best at this channel to make sure that as much as practice is given to you, so irrespective of what was your past level of expertise in accountancy, अभी आप एक एक्सपर्ट बन जाने चाहिए. ओके, टिल द टाइम वी मीट अगेन, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना है तो इट्स अवेलेबल. प्लीज़ डू कमेंट, एंड जो भी आपको उसके अंदर डाउट रहेगी वो आप पूछ सकते हो. ओके, अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखना. आई विल मीट यू वेरी वेरी सून. ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.